Hello everyone. Today I am going to discuss one of the very important topic. This is for all the students who are moving from class 10th to class 11th, because as we know that when a student move to the class 11th, he has to choose some subjects, that what subject he is going to pursue his further study in. So it may be there are a number of subjects offered by the different schools. It may be humanity, it may be commerce, it may be science, it may be maths, it may be bio, it may be computer science, it may be Hindi, it may be economics, it may be history, geography. There are so many subjects. Languages are there. Some of the good colleges, some of the good schools, they are even offering the foreign languages, and many other things are there. Okay, and it is ultimately going to decide their future. So the topic for today's discussion is how to select subject in class 11th. When a child comes to class 11th, he is in an utter dilemma. He is in a state of confusion that what to do, because the subject is going to select, there are a number of people who are giving him guidance. The elders are there, the friends are there, he is himself is having got some desires. Then some for some friends comes, or some uncle, some auntie, someone from abroad, someone from different places, they all give their suggestion. Similarly, what are the scopes? Suppose I take one particular subject, I opt science, maths, what I am going to get. Or suppose I get which subject I choose as a science and bio, what what are my future, or what are my scopes which I am going to get out of it. Then do I really require coaching? Because all my friends, they all are going to coaching. Is it really required to have coaching? Is coaching going to be really useful for me? That is again a question. Then the next question is, how can I have any future with these marks? Because when a child is securing marks in class 10th, some may score 70%, some may score 80%. A child is getting marks from 60% to 95, 98, 99%. Now the child of 99% and the child of 60%, both are studying the same class. They always have a question: will I be having any future with these marks? The parents even put sub questions like, what you are going to do with these marks? Will it be of any use? Then there are different combinations available. One can choose maths plus computer, one can choose maths plus Hindi, maths plus foreign language, maths for plus economics. Some takes bio plus computer science, some take bio plus some of the regional language or some other subjects. Similarly, the student who is having commerce, they may take computer science along with it, they may take economics along with it, they may take history along with it. So there are different combination. Do we have to simply follow the combination which school is giving us, or do we have to choose combination of our choice? Is there any real benefit advantage out of this? That also again I had to discuss on this video. Then the next is, that is how to get admission. There are so many courses available, where when a child is going to pursue, suppose he want to do engineering. Now there are different engineering colleges, so where how to get admission? Okay, fashion designing, there are so many colleges, how to get admission? So that is again an issue which we with a child is in a dilemma. And then, will I be able to switch over to some other subject? Because number of time a child may choose subjects in hurriedly, but later on he may find that he is not compatible with those subjects. Then will he be able to switch over to some other subject? So all these aspects I'm going to discuss in this particular video. So please be careful and watch it till the end. It is definitely going to give you some advantage. I ask all the parents, all the children who are pursuing from class 9th, 10th, 11th and 12th, they should all watch it, because for the students of class 10 to 11 it is very important. Even those who are pursuing in 9th, they can now only think that what are they are going to do. And those who are in 11th, 12th, they must have come with some ideas, but they may get some more ideas with this particular video. So this is going to be a very important video. Please watch and show it to your parents, show it to your brother, sister, peer group, etc. everyone. So ask everyone to see this video. I am going to discuss it. Let's start.
And the very first thing is, that is, first of all, I must congratulate that you all have passed class 10th and now you are moved to class 11th. So your one phase of education is over, that is secondary phase, and now you are in the senior secondary phase. So in this phase you have to be little bolder. Now you are no more spoon fed, rather you are just left on your own decision that how to make your future. So now you are in a most important stage of your life to decide your future. Okay, to select particular subjects. Now how will you do it? That is very important thing. How will you do it? That is the thing which we are going to discuss here. So first of all, I think most of you must have already decided that what goal, what subject, what thing you want to do. So until and unless you have decided a goal, it is very difficult. It is something like that: you would reach to the railway station, there are different trains comes. You cannot simply decide that any train will come, I'll go and sit in that. Or you go to the bus stop, there are so many buses standing going to the different destination, and you can simply board in any bus. No, you will have to decide first that where you want to go, and then you will have to buy ticket, you have to reserve your ticket, and you have to go to the bus stop or railway station in the right time, and then board the train in the correct place. It is same way you have to choose your subject. It is not that anything like whatever school is offering you are taking, whatever like let's meet study now, I'll see what happens next. Okay, it should not be like that. You must be very well prepared. You must have already set a goal, and most of the children already set a goal when they are right from the childhood, when they see some uncle who is doctor, or someone who is engineer, or someone who is pilot, or someone who is air hostess, or someone is having a chartered accountant. So they are seeing them, they are observing them, they are, most of the time they may be going after their lust. That is, they are having so much of vehicles, so much of money, so much of some like their uniform, the armed forces their uniform, or the pilots their uniform, or the doctors their uniform. And somehow that some like to see that how their vehicle is coming, the driver is coming and waiting for him. So the children decide right from the child, but it is not that all the time whatever our decision is correct. So our decision must change, our goal must change over a period of time. Right? When a child is just in KG or LKG class 1 to, everyone want to become doctor, what you call teacher, because they are seeing teachers only most of the time, and they are observing them only. Then slowly they start looking here and there, and then they come to know that my uncle, my auntie, my brother, my sister, my this and that, and neighbors and all, what they are doing. And then the child become inquisitive, and they simply ask that what uncle is doing, what is the role and all. Okay, so the setting a goal is very important, because setting a goal is only will decide that what path to take. As I said, unless you know that which destination you have to go, you cannot catch a right bus or a train. So first we'll focus on to the way, that is how a child is actually deciding that what subject to be taken. So that is the goal and all. Okay, so we will talk about that. A child is selecting subject on following basis. Very first thing is the parental pressure. The parents are always after, you have to become doctor, you have to become doctor, we have got a nursing home, who will run after it? Or if suppose someone is a advocate, and he is having very good practice, now he wants that the entire the office will be run by his child. So as he is running all these cases, slowly he will train his child also, and everything is set up so that can be followed. But parents are not all the time ultimate decision makers. Okay, of course parents should be a guide. Parents should be a guide. A child is having his own dream, and you cannot simply shatter his dream. You can discuss with him. Okay, then the children are also influenced by peer group, that what my friend, it is very common, this is very common, because the child is who is just stepped in class 11, they are at a very tender age. So they just simply say, what subject are you taking, which coaching you are going, what you are doing, why you're taking maths, why you're taking arts, and then whatever it is. So, if you ask, the parents ask what subject you are opting, Papa, I am going to take humanity. Why? My friends are all my friends are taking that. Your friends may have some other reasons.
they may have some different backgrounds. हो सकता है that their parents are having some well defined business in which they want to put on their child. Okay, somebody is taking commerce because they're already running some industry, or his father may be a chartered accountant and you want to put him into his office so that the trend may go on, but it may not be true for you. So the peer group's decision is not always correct. Okay, then the next in the line is that is influenced by the elders and brothers and sisters and neighbors and all, because children are most of the time seeing them only, so they are taking their decision on the basis of their influence. Okay, but that is also not all the time. A large number of students are taking their decision because they have a fear towards one subject. Many children are afraid of maths, so they may think, अरे I should not take maths तो मेरे बस की बात नहीं है भाई. But that is not the correct thing. It may be that you are not liking a particular subject because the teacher was not as influential, or you must have a fight with the teacher, or you may have a disliking to a teacher, or you may be or your one particular part was weak, and then you develop fear. But the fear is not a thing. Fear can be brought up, you can overcome fear by practice. ठीक है. Taking a very simple example of our Chetan Bhagat, when he passed with very medium marks, that is 74-75% marks, then everybody thought अब क्या करोगे. Somebody said कुछ तो कर ही लेगा. So that thing hurt him. मतलब why they said? Because he was getting less marks. Why he got less marks? Because he was bindas, he was not worried. Then he asked some other that is elders, and he asked which is the best line to choose. So they said ki IIT. Okay, IIT. So 2 years continuously he put his heart and soul and his whole everything, and he got through IIT in very first attempt. Again, and now after finishing his chemical engineering, then he thought, now what to do. Then again he asked someone, what can I do now? So people suggested, do MBA. He did MBA, then he got selected in bank. But did he continue to serve in bank now even? No. He's writing novels. He's a motivator, saying a resource person. So he just changed his line. Now this is what happened when we choose wrong subject. So I gave it two things in this, that he was not as good in the maths at that time, so he just scored average marks, but he just kept on working and working and working and working, and he in very first attempt he got through. Secondly, a wrong choice, because he simply asked his friends what to do, what is the best profession available. So they simply said कि इंजीनियर बन जा, IIT कर ले. But he never thought कि IIT के पहले IIT के बाद में क्या. And it was a wrong mistake, the same decision which he made, and later on is finding his satisfaction into writing. So had he chosen a correct subject, at least those two children whose seats he occupied, at least they could have got something better. So no, I'm not saying that he was wrong, or he should not do, or one should not do that all. One should have a full right to study whatever they want to study, whatever they want to become, let them become. Okay, so that is fear. The next is likingness of a certain subject. Now since when I say something, somebody I ask, what subject you want to take? Sir, मैं तो बायो लूँगा, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है. Is there any relation of bio and drawing? Somebody, if I ask, why you are so good in bio, then why are you not taking bio? Sir, bio is a subject of mugging up. It is not like that. It is not like that. These are the mistakes which someone has fed into us. Some wrong interpretation which is given by somebody else into our mind. Okay? And the most importantly, the unawareness. We are unaware that what are the good points and negative points.
what are the scopes which I discussed in the earliest. ठीक है, so let us see one by one them. ठीक है, तो how a child should select subjects, let us focus on to that. ठीक है, so here I am going to focus on to those topics, that is those points on the basis of which he should choose the right subject. ठीक है, so let us see one by one. This is looking on the interest and potential. The very first thing, interest and potential. Now if I say interest as an intelligence, now someone is very intelligent in singing, okay, so he should pursue into that line, that is either in the music or either in the uh, recording or in the engineering, in the sound engineering or something like that related to that, because it is said that if you make your habit as a profession, then you will be the most satisfactory person. The one who is having habit of anything, say for example there are people who like to roam around, very good, you make it as a profession, travel agent ban jao, start providing touring services, advisor ban jao, touring advisor, photographer ban jao, videographer ban jao. There are so many things which are related with the touring, and you will enjoy, you will get a chance, as well as you will enjoy your work, because it is not a burden but it is your interest. Okay, so potential and caliber is very important. One who is not having that particular interest or caliber, and you are forcefully asking him to take science or maths or commerce or arts, whatever, his interest is not there, unnecessarily he will be forced to study, which he may not get a good result. ठीक है, then look for the scopes available, very important. There are so many subjects now. In present time, I think this point is also going to be weakened, because I have seen so many children who got their engineering in chemical science, and they are doing engineering in the computer science. ठीक है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ सच टाइप ऑफ वंडर्स. यू सी, देर आर इंडस्ट्रीज, बट द इंडस्ट्रियलिस्ट जो मालिक है उसको पता ही नहीं है वो इंडस्ट्री में प्रोसेस कैसा होता है, हाउ द थिंग इज डन, how the caustic soda is made, he don't know, he just put in the money, he just constructed. Whereas in most of the countries what we find, that a real engineer is there, or a person is there who's got some basic knowledge, he only put up some industry. So when Steve Jobs put up an industry, or he started a business, his business is going to be best, but because he had a knowledge. और आप क्या है, किसी आदमी को, हाँ भाई मेरे पास बहुत पैसा है, कुछ करना है, क्या करना है, सो यू जस्ट गो एंड आस्क समवन एंड देन सम ही सेज कि आप तो ऐसा कर लो, वो बिज़नेस चालू कर लो सर. अनिल अंबानी ने खूब पैसा था, किसी ने कह दिया अरे साहब आप क्या कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन में चल जाओ, एंड ही जस्ट आस्क हाँ भाई क्या होता है टेलीकम्युनिकेशन के, भाई CDA में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, सबका इन्वेस्टमेंट चलता है, ला दे CDA. आज CDA में कोई जानता ही नहीं है. व्हाट हैपन टू हिज बिजनेस, ऑल गॉन वेस्ट. ठीक है, सो अगर आपको खुद में नॉलेज होगा तो आप परस्यू करोगे, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट इज क्या है, लुक एट द फैसिलिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, फैकल्टीज, कोचिंग, बुक्स, एडिशनल सपोर्ट एक्सेट्रा इज अवेलेबल और नॉट देयर. इफ इट इज नॉट देयर, are you in a state to go somewhere else to pursue all these things? That is again a very important thing. Okay, so I simply cannot fulfill my desire looking at local situations, so I may have to be able to take admission somewhere else. I have to make my career according to that dream. Then look at the job opportunities which is provided by the each subject. ठीक है, and what are the trend keep changing. So now next, now I am going to focus on some of the common scopes for a particular subject. ठीक है, we have very common 4 subjects. So generally we have got 4 combination, the science with maths, science with bios, the commerce and arts and humanity. So I'll focus on these 4, and other combination you can make of according to your choice. Okay, so let us see. सबसे पहले, that is the best, first of all we are focusing on the most common subject, and the most common subject क्या है, science and maths, science with maths.
Okay, now again I'll try to I'll tell you one more thing. So far, a student who's going to pursue science has to take science, physics, and chemistry either with maths or with bio. Now, from this year, CBSE has even made a choice little more elaborated. Now you can even with one of the science subject you can take geography or history or economics or accounts or business studies or some third language. So it is not necessary that one should have to have a chemistry and physics and maths in the science. So what science I am talking here, the science and maths, is no more necessary to have physics, chemistry and maths. One can even have physics and chemistry you don't like, then you can take economics and then maths, or one can choose फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स की जगह कुछ और ले लो, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकते हैं। एनीवे आई एम स्टिकिंग टू द ओल्ड system here, that is science with mathematics, where physics, chemistry and maths are there, and the fourth subject English is always fixed. Everyone has to study English in the CBSE school, and the fifth subject can be of your choice. It can be computer science, it can be Hindi, it can be economics, it can be any of the foreign language or any of the other subject which is offered by your school. Okay, CBSE has got a whole list of subjects available. Even though subjects which are not available in your school, you can take and you can study your own, and you can understand. So it is not necessary that a school should offer the fifth subject all the time. Okay, so this is the thing. Now let us see what are the scopes available, that what a child who has opted maths can do. He can get into IIT or any other engineering college. There is now one joint exam, that is JEE. So JEE you give, and if the best, the top rankers are, they go to the IITs, then NITs, and then there are so many other engineering colleges are there. On the basis of their rankings, they get admission into this. So bachelor of computer science, there are number of computer colleges are there which are only teaching computer science. There are BCA and MCA courses. Even in graduation, the computer science courses are available, so that also a child can pursue with the subject of science and maths. Information technology and computer science are hand on hand. One is playing more importance on the hardware and software, other is only on the software. Engineering degree in the various field, so that is all comes into that same thing. Then fashion technology. Now remember, the fashion technology and fashion designing are two different things. So fashion technology is dealing with all the technologies which we are involving in the latest fashion. Okay, so you have to deal with the developing machines related to that. So you might have seen embroidery, you might have seen knitting, you might have seen different combinations of the threads used in the knitting. So they all are done by machines. So technology, when we talk about, we are talking about that those all equipments, what those all technology which are used to develop fashion. Then fashion designing and the product designing. Now fashion designing is everyone's dream. Any girl you ask kya karna hai, fashion designing क्यों, just make 2-3 lines and make some clothes, and oh, yeah, you are very good at this thing. That is inbuilt property in everyone who जो थोड़ा बहुत क्या कहते हैं ड्राइंग जानता है. But I'm not discouraging them. It is very good. One have to have some knowledge of that. And fashion technology, fashion designing is a everlasting subject. हर महीने नए फैशन आते हैं, हर वीक नए फैशन आते हैं. India is a country where so many, the population base is so big, and we have got different states, and different states have got different type of costumes. Plus we got so many serials, and where some new clothes and etc are put up, and those are liked by people, and people go in, sir वो serial वाला dress दिखाओ, है ना. So fashion designing is everlasting subject. Product designing is something which people are not aware of. Okay, now I got here a charger. I got many other charger, or you might have seen the shape of the charger.
You see the fans which used to get in our home, old fans, they were all black, white एंड सेम थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क. फ्रिज देख लो, सबके घर में एक जैसा ही मिलता था, थोड़ा बहुत हैंडल में फ़र्क हो गया. नाउ डेज यू सी so many companies every month or every year they release fresh lot of fridge which is very much different from the old one. AC पहले केवल वाइट कलर का आता था, सिंपल सा. आजकल देखिए तो दिस आर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग. द पेप्सी की बॉटल, over a period of time the bottle is design is changed. Companies goes on changing their design not only for looking giving an appearance but also avoiding misuse of it. नहीं तो क्या उसी बॉटल के अंदर नया भर के बेच देगा, वही चलती रहेगी साल दर साल, है ना. तो दे हैव टू डिस्करेज दैट. जैसे नोट बदला है ना, मोदी जी ने नोट बदला है ना, पुराने नोट्स आर आउट ऑफ सर्कुलेशन. द सेम वे कार डिज़ाइनिंग, है ना. तो सो एवरीथिंग में, हर चीज़ में डिज़ाइन है. आप दरवाजे के नट बोल्ट देख लीजिए, ठीक है, स्विचेस देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल स्विच, फैंस देख लीजिए, फ्रिज देख लीजिए, कार्स देख लीजिए, टायर देख लीजिए, और व्हील कैप देख लीजिए, कंप्यूटर्स, लैपटॉप. एवरी लैपटॉप विच आई गोट और सो मेनी लैपटॉप्स हियर, ऑल लैपटॉप सबके सबके डिज़ाइन अलग अलग है, ठीक है ना. एवरी टाइम आई वेंट टू बाय, वन ऑफ द क्राइटेरिया वॉज डिज़ाइनिंग. Okay, interior designing, I need not to talk about, everyone knows what is interior. Dairy technology, lot of technology is involved in the dairy, that is the milking and its preservation and fat separation and what you call bottling and all those things are integrated degrees in the various courses of merchant navy. Very good job. Only disadvantage is that the person is out for at least 3 months, 3 महीने, 6 महीने, 5 महीने, वो डिफरेंट का जॉब के कंडीशन है, उसके हिसाब से ही विल बी ऑन द ऑन शोर एंड ऑफ शोर, ठीक है. सो दैट इज बायोटेक्नोलॉजी. इट इज़ अ ब्रांच विच कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ, दैट इज़ फ्रॉम द बायो एज वेल एज फ्रॉम मैथ, ठीक है. एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सो मेनी टूल्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, right from the equipments which are used in the agriculture to the storage, for the processing, for preservation, for plant bottling and all everything. So there are so many things are there in that. And BBN that can also be pursued by the students. And NDA, that is those who want to go in the armed forces. There are so many lines in the armed forces. Now I have not discussed each one of that. The armed forces are having all 3 lines, that is the Navy, Army and Air Force, and all 3 are offering lot of opportunity for the students who are having maths and science subjects. Take a maximum opportunity they get. Okay, so that's what for the run through for all the students who are going to have maths is providing lot of scopes, ठीक है. So I need not to discourage or encourage, that is there are lot of scope and there are lot of things available for the students who are having maths. They can get job. Achha, these are the specialized lines I sort of talk about. There are some common things which we'll discuss later, like bank PO, and anybody can go through. वो आर्ट्स से भी आ सकता है, कॉमर्स से भी आ सकता है, मैथ से भी आ सकता है, होटल मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है, आर्म फोर्सेस में कोई भी जा सकता है, ठीक है. तो दैट इज़ वाई दोज थिंग्स आई डिस्कस लेटर. IAS कोई भी बन सकता है, IRS कोई भी बन सकता है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है. नाउ साइंस एंड मैथ्स आर ऑफरिंग so many different type of opportunities, so you can just go through this slide and you will come to know that what all things are there. Okay, next is with the advancement of the technology, engineering is now required in all the fields, ठीक है. डिफेंस में देख लीजिए आप, कितने सारे कितने टाइप के क्या कहते हैं, आर्टिलरी आर देयर, ठीक है, बॉम्ब्स आर देयर, शिप्स आर देयर, ऑल सबके लिए जो है हमको इसकी जो सो मच सो बायो वाला है, इंजेक्शन लगाना है, सिरिंजेस, बॉटल्स, टूल्स, है ना, सब में चाहिए, हियरिंग एड, सबके सब. बिना मैथ्स के, बिना फिजिक्स के ये चीज़ें हो नहीं सकती हैं. तो वन हैज़ टू हैविंग लॉट ऑफ स्कोप्स इन दिस, ठीक है. नेक्स्ट सब्जेक्ट इन लाइन इज साइंस एंड बायोलॉजी. साइंस एंड बायोलॉजी, जैसे साइंस बायोलॉजी कहते हैं, सब कहते हैं सर एक ही तो चीज़ है, अगर आप डॉक्टर बन गए तो बन गए, नहीं तो फिर आपकी ज़िंदगी बेकार है. ऐसा नहीं है, ज़िंदगी किसी की बेकार नहीं होती है. देर आर लॉट ऑफ स्कोप्स बट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट. सम थिंग पीपल आर बिकम मोर अवेयर नाउ डेज व्हेन द कोरोना इज कमिंग टू बीइंग. सो लेट अस हैव अ लाइन ऑन इट, दैट इज वेयर
where as we achieved greater success in many of the sciences, biology is just in the childhood. ठीक है, but not much of work is done in the science. हालांकि मैं ये कह सकता हूँ कि साइंस वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाय सेल्फ. अर्लीस्ट ग्रीक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बायो को सब अपने अंदर से ही ढूंढना शुरू करा. हमारे भी आयुर्वेदा पूरा वहीं से भरा पड़ा है, लेकिन फिर बीच में हम उनको सबको छोड़ करके बाकी चीज़ों में चले गए. कैसे एसी बनेगा, फ्रिज बनेगा, टीवी बनेगा, टूथपेस्ट बनेगा, साबुन बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, और फिर हमने अपनी तरफ ध्यान देना कम कर दिया. ठीक है, हैड वी परस्यूड द सेम थिंग एज विथ व्हाट डिज़ायर वी वर स्टडिंग साइंस ऑफ सेल्फ, तो हम आज बहुत आगे होते हैं. मोस्ट ऑफ द डिजीज विच वी वुड हैव कॉन्कर्ड. एनीवे, द स्कोप्स विच आर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बायो इज़, वो MBBS कर सकता है, वो BDS कर सकता है, दांतों का डॉक्टर. ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, वी टॉक अबाउट द फॉरेस्ट, देयर कंजर्वेशन, देयर डेवलपमेंट, है ना. डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन इज ऑलवेज अ इशू विच इज डिस्कस राइट फ्रॉम क्लास 2 टू ऑल द क्लासेस. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, I need not to talk about it now. इतना कुछ जान गए हम. Every tongue is talking about vaccination. What is vaccination? Where this vaccines or immunization is come from? बायोटेक्नोलॉजी के बिना हम सोच भी नहीं सकते वैक्सीनेशन. गया वो ज़माना जब हम किसी जानवर के अंदर वो पालते थे, फिर उसको निकाल करके वुंडेड करते थे, फिर वैक्सीन बनाते थे. नाउ एवरीथिंग ऑफ दीज आर done genetically, biotechnologically. Okay, and there are so many things in biotechnology, right from the test tube baby to test tube baby, that is in vitro fertilization, to the highest of high, that is organ culture, जहाँ हम स्टेम सेल से नए नए ऑर्गन्स बनाएंगे. सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी में आएगा. वेरी वाइड स्कोप टू चेंजिंग. आप देखो ना, पहले वाले फ्रूट्स कैसे होते थे, छोटे साइज़ के और जल्दी सड़ जाने वाले. आज टमाटो आता बड़ा सा, हफ्ते भर बाहर रख दो इस गर्मी में भी, तब भी ख़राब नहीं हो, है ना. फ्रूट्स, एप्पल्स वगैरह, है ना. यू हैव गॉट मोर जूसी फ्रूट्स. पहले वाटरमेलन लाते थे तो कोई गारंटी नहीं होती थी मीठा निकलेगा. बायोटेक्नोलॉजिकली दे आर मेड सो टेस्टी. आप कोई सा भी ले आओ, अंदर से एकदम झक लाल निकलता है. ठीक है, देर आर सो मेनी फ्रूट्स विच वी आर मेड विदाउट सीड. ऑल देर आर जो है बायोटेक्नोलॉजी की देन. मॉलिकुलर बायोलॉजी, वेर वी आर डीलिंग विथ molecules which are used, taken part in the biology. They may be vaccines, they may be some type of enzyme, some type of hormone, some type of, तो they are used. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बायोमोलिक्यूल्स की हमको खास ज़रूरत पड़ती है. एंड दैट there is a branch of biology which is dealing with this. Genetics, everyone want to know how character passes from one generation to other. और आजकल तो जो है वो एक वर्ड तो सबने सुन ही रखा है कम से कम, DNA एनालिसिस, है ना. DNA एनालिसिस पार्ट ऑफ जेनेटिक्स. सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ मैं जो हर कोई समझ सकता है. तो जेनेटिक्स जिसमें हमको कहाँ का ज़रूरत पड़ेगी. एक बस में आग लग गई, 50 पैसेंजर थे, सब मर गए, जल गए. ठीक है, अब जली हुई बॉडी में हम कैसे पता करेंगे कौन क्या है. कोई भी कह सकता है भाई वो हमारा फलाना रिश्तेदार था, उसकी 50 करोड़ की इंश्योरेंस थी और वो मर गया इस बस के अंदर, उसका टिकट दिखा दो. बट इंश्योरेंस कंपनी इज़ नॉट गोइंग टू बिलीव. वो कहेगी आप उसका DNA एनालिसिस करो, तो आप पता करो, बॉडी निकालो, हर बॉडी का DNA निकालो. इफ़ दे इंश्योर दैट इट वॉज द राइट पर्सन हु बर्न्ड अलाइव, देन ओनली दे गिव द इंश्योरेंस. तो देखो कहाँ की चीज़ कहाँ आकर के रिलेट होती है ना. तो जेनेटिक्स, लॉट ऑफ स्कोप्स आर देयर. आई जस्ट गिव वन एग्जांपल. लोग बात तो बच्चे भी पता करते हैं कि मेरा बच्चा ओरिजिनल है कि नहीं है ना. बहुत सारी चीज़ हॉस्पिटल में चेंज हो जाते हैं. कोई भी कह देता है साहब ये मेरा बच्चा है ही नहीं, मेरा बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता. DNA टेक्नोलॉजी चेक करो साहब, पता करो, है ना. DNA फिंगरप्रिंटिंग से. तो ये है बायोकेमिस्ट्री इज देयर, वेयर वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स एंड क्या कहते हैं, जैसे इंसुलिन इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट थिंग. ठीक है. देन फार्मेसी, वेयर वी डेवलप मेडिसिन. ठीक है, हर मेडिसिन बनाना कितना tedious काम होता है. 2 लैब ने बड़ी मुश्किल से वैक्सीन बनाए. एक मंत्री जी आते हैं, बोलते हैं कि वाई ओनली 2 लैब्स आर गिवन द परमिशन, वाई नॉट अदर्स. उनको भी दे दो. कैसे दे दो साहब, एक वैक्सीन बनाने में लाखों लाख रुपए खर्च हो जाते हैं और कितना कुछ करना पड़ता है. The vaccine which is developed by one of our lab is not even reached to the 4th phase. हमने वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया. एनीवे, आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग बैड अबाउट इट, बट क्योंकि देयर वाज अ नीड ऑफ डिमांड. ओके, तो वो करना पड़ा, हमारे को ज़रूरत थी. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि
एक वैक्सीन, एक टैबलेट, एक इंजेक्शन को बाज़ार में आने में कम से कम 3 से लेकर 5-6 साल लग जाते हैं। तो कंपनी इतने साल एक्सरसाइज कर रही है, फर्स्ट ही विल स्टडी दैट, इट विल स्टडी द डिजीज़, द नेचर ऑफ द डिजीज़, फिर कि इसको कैसे कॉन्कर कर सकते हैं, कंट्रोल या बढ़ा सकते हैं, कैसे करेंगे, फिर वो मॉलिक्यूल कहाँ बनेगा, फिर वो कैसे बनेंगे, कितने अमाउंट में होना चाहिए, क्या डोज होना चाहिए, एंड ऑल लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व इन इट। फिर उसकी ट्रायल्स होंगी, तब कहीं जा कर के वो बाजार में आएगी। तो वो फार्मेसी। माइक्रोबायोलॉजी, देर आर नंबर ऑफ माइक्रोब्स विच आर गुड एंड देर आर नंबर ऑफ माइक्रोब्स विच आर बैड। कुछ होते हैं जो हमको बीमारियां कॉज करते हैं, कुछ हैं जो हमारे लिए काम आते हैं। दही बनाने के लिए माइक्रोब्स काम आ रहा है, चीज़ बनाने के लिए माइक्रोब्स काम आ रहा है। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़, मोज़रेला चीज़ अलग, घोड़ा चीज़ अलग है, हर एक के लिए अलग अलग तरह के माइक्रोब्स काम आ रहे हैं। एलर्जी किसी टाइप के माइक्रोब्स हो रही है, कोई डिजीज़ किसी माइक्रोब, तो उनके सब की स्टडी एंड हाउ द फ्रेंडली माइक्रोब्स आर देयर, उनके नंबर कैसे बढ़ाएंगे, उनको कैसे यूज़ करेंगे, हाउ द हार्मफुल माइक्रोब्स आर देयर, उनके नंबर कैसे कम करेंगे। ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एग्रीकल्चर साइंस, आई टोल्ड यू एग्रीकल्चर इज इंक्लूडेड इन द मैथ्स एज वेल एज इन साइंस। तो साइंस में हम एग्रीकल्चर में सारी उन चीज़ों की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ गुड वेराइटी ऑफ फ्यू क्या कहते हैं, मैन्योर्स, पेस्टिसाइड्स, दिस एंड दैट, जो भी साइंस। वेटनरी साइंस, बहुत स्कोप है आज की तारीख में वेटनरी। लोगों ने 1-1 लाख के कुत्ते पाल लिए हैं, 10-10 लाख वाले कुत्ते पाल रखे हैं। दे वुड नॉट लाइक कि उसको जरा सा भी कहीं रेड भी हो जाए कान, ठीक है, दे विल रन इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल। तो वेटनरी साइंसेस, पेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं लोग बाग। पहले वेटनरी साइंस का मतलब केवल गाय भैंसों पे ही खर्चा हो रहा था, है ना, दे आर द ओनली एनिमल। सो अर्लियर वेटनरी साइंस मीन्स यू विल बी गेटिंग अ जॉब इन द विलेजेस, इट इज़ नॉट सो नाउ, ठीक है। तो वेटनरी साइंस हैज गॉट अ वेरी गुड स्कोप। डाइटिशियंस, देखो जिसका देखो उसका शेप खराब हो रखा है आजकल, एटलीस्ट विद दिस टाइम ऑफ कोरोना, जब वो वर्क फ्रॉम होम, नो एक्सरसाइज, किसी का तोंद निकल रहा है, किसी का कैसे हो रहा है, कुबड़ हो गए हैं ऐसे बैठे हुए। तो डाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यू सी ऑल पीपल हु आर वर्किंग इन फिल्म्स, ऑल पीपल हु आर गोइंग इन द फ्लाइट। अब फ्लाइट का कैप्टन कोई हट्टा कट्टा मोटा नहीं हो सकता। एयर होस्टेस तो हम जानते ही हैं, जरा सा वेट इधर अनफिट हुआ उनको फिट हटा देते हैं वहाँ से। सो देर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर यू नीड टू बी फिट। अब ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, हम तो ऐसे ऐसे पुलिस वाले भी देखे हैं जो चलने में दिक्कत दे रहे हैं, वो भागेंगे कैसे, लेकिन दैट इज़ नॉट द गुड क्राइटेरिया। सो फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द फिटनेस इज डाइट। Beside that, you might have seen whenever we get hospitalized, any surgery, एक डाइटिशियन आएगी, वो चार्ट दे जाएगी आपको ये खाना है। हॉस्पिटल में रहेंगे तब तक तो वहीं से खाना आता रहेगा, उसको चाय के साथ में 2 बिस्किट या मिल्क के साथ में बिस्किट या खिचड़ी या दलिया, ये वो जो भी चीज़ें, सो वो उनको दे रहे हैं, ठीक है। एक नारियल पानी देना है ना, हु इज़ डिसाइडिंग, द डाइटिशियन इज डिसाइडिंग, नॉट द डॉक्टर, ठीक है। तो डाइटिशियन, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर नाउ डेज, ठीक है। सेम पीपल आर बिकम कॉन्शियस अबाउट देयर बॉडी, तो उसके लिए फॉरेंसिक साइंस, आई नीड नॉट टू से इतना ना कुछ। टीवी पे सोनी टीवी ने जो है पूरा CID सीरियल लगा करके लोगों को सबको अवेयर बना दिया फॉरेंसिक साइंस के लिए। एनवायरनमेंट साइंस, राइट फ्रॉम क्लास 2 वी आर स्टडिंग एनवायरनमेंट स्टडीज़। Why? Because of the technology, because of the machinization, because of the development in the sciences in the different field, we have spoiled the environment like to the worst, ठीक है। टेक्निकली इन एनी कंट्री 33% ऑफ द लैंड शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट। कहाँ है, कहाँ है, किताबों में भी नहीं बचा अब तो, ठीक है। सो एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो टू सेट अप एनी इंडस्ट्री, environment clearance is required. To construct dam, environment clearance is required. To use of any pesticides, environment clearance is required. So there are so many places where the environment we have to be very careful of. तो environment science good scope, number of jobs are available with this, ठीक है। कंपनी के खुद के अपनी environment साइंस इंजीनियर्स होते हैं एंड गवर्नमेंट के खुद के होते हैं। बायो सिमुलेशन इज़ अ न्यू ब्रांच, जहाँ हम कंप्यूटर की नॉलेज को हमारी बॉडी के नॉलेज के साथ में, बॉडी के फंक्शंस के साथ में रिलेट करके कुछ चीज़ें बना रहे हैं। इट मे बी लाइक द सिंपलेस्ट एग्जांपल इफ़ आई से बायो सिमुलेशन से बना हुआ, दैट इज़ ECG। अब आप ECG से थोड़े आगे चल जाएं तो जितनी भी चीज़ें के आप देख रहे हैं ट्रेडमिल पे जो एक्सरसाइज हो रही हैं वो सब, ठीक है। फिर आपने देखा होगा EEG,
वो एक हेलमेट बना देते हैं, है ना, और वो पता करते हैं कि कौन सा पार्ट उसका वर्क है या डैमेज है या नहीं है, ठीक है, ये क्या सोच रहा है, उसको शॉक देंगे तो क्या सोच रहा है, फिर झूठ बोलने की मशीन, सच बोलने की मशीन, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है. ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ बायोसिमुलेशन. फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन. We know every food, most of the food is a seasonal food. They are available only in a particular season, and in particular season they come in bulk. आज बाज़ार में जाओ, टुडे इज़ 11th June, 11th June 2012, नहीं 2021, सॉरी 2021 को. आप मैं अभी बाज़ार जाके आया, मैंने एवरीवेयर मैंने मैंगोस देखे हैं, सो मेनी मैंगो. आई वाज जस्ट वरीड, इतने महंगे थोड़ी बिकते होंगे. सो व्हाट विल हैपन? और ये तो केवल मेरा शहर है, ऐसा पता नहीं कितने शहर होंगे. तो व्हाट दे मे बी डूइंग व्हेन द एक्सेस प्रोडक्शन इज देयर, सो दैट इज़ गोइंग टू बी प्रोसेस्ड. उसका जूस निकलेगा, ठीक है, उसको कुछ और तरह से कोई आइसक्रीम के अंदर डाल रहा होगा, किसी और चीज़ में, तो वो सारा प्रोसेसिंग है. प्रिजर्वेशन है, उसको कैसे प्रिजर्व करेंगे सो दैट इट विल बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है. तो उसमें क्या डालना है, क्या नहीं डालना, हाउ टू प्रिजर्व, हाउ मच शुगर टू बी एडेड, व्हाट प्रिजर्वेटिव टू बी एडेड, व्हाट कलर टू बी एडेड, हाउ दिस थिंग, ऑल दिस थिंग्स. तो जितनी भी फूड हम खाते हैं बाज़ार में, बिस्किट से लेकर के जूसेस तक, और जो भी चीज़ हमको अवेलेबल मिल रही है, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन. तो फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप सिंपल सी बात है कि गेहूँ का आटा 25 रुपये 28 रुपये किलो आता होगा, उसको थोड़ा सा प्रोसेस कर देते हैं और वो बिस्किट बन जाता है. देन ओनली वो 100 ग्राम का बिस्किट होता है, वो 25-30 रुपये का आता है. तो प्रोसेसिंग इंक्रीजेज द कॉस्ट टू सो मच, ठीक है, तो रिटर्न कई गुना बढ़ जाता है. तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच. पैथोलॉजी आप जानते हैं, जगह जगह लैब हो रहे हैं. मोस्ट ऑफ द डिजीज़ आर कॉज बिकॉज ऑफ द पैथोजेंस एंड हाउ, तो उनकी स्टडी और उनके बारे में रेडियोलॉजी, एक्सरेज और MRI एंड दिस एंड दैट, जो भी है, नर्सिंग, ठीक है. इन द प्रेजेंट सिनेरियो वी केम टू नो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सेज. नर्सेज मीन्स नॉट ओनली नर्सेज, फीमेल नर्सेज, मेल नर्सेज बोथ, ठीक है. तो उनकी अपॉर्चुनिटी, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो आज हमको मालूम पड़ी है, ठीक है. अदरवाइज सब ऐसे उससे नर्सेज का क्या है स्कोप. से अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया में आता है तो अपने साथ में 2-3 जॉब वालों को लेके आता है, ठीक है. जब इंडिया का कोई भी इलेक्शन हो रहा होता है तो वो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हीं के एरोप्लेन और उन्हीं के हेलीकॉप्टर क्यों कर रहे हैं वो सब? बिकॉज ये सब बिजनेस है. ऑल दीज आर बिजनेस बिकॉज द रूल्स एंड रेगुलेशन कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है. आप वैसे तो कहोगे साहब बहुत पॉल्यूशन हो रहा है कारों से, देन वाई आर यू अलाउिंग सच मोर पावरफुल इंजन? जब एक मारुति 800 सीसी के इंजन से चल सकती है और ज़्यादातर गाड़ियाँ जो बाज़ार में मिल रही हैं वो 1500-1400 सीसी में चल रही हैं, दे आर वेल परफॉर्मिंग, देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ 4 लीटर इंजन है, और उसकी स्पीड 300 किलोमीटर है. क्या फ़ायदा भैया, इंडिया में कौन सी सड़क पे चला लोगे? लेकिन ये तो कॉमर्स है, ये तो कॉमर्स है. उनको तो बिज़नेस से मतलब है. कंपनी सोचती है कि भाई मैं ऐसी महंगी कार बनाऊँ, एक कार के अंदर इतना प्रॉफिट कमा लूँ. गवर्नमेंट सोचती है एक कार के अंदर ही हमको इतना टैक्स मिल गया जितना कि 100 स्कूटर 1000 स्कूटर में मिलता है. सो ऑल दीज आर बिजनेस. आप कितना भी ऐड कर लीजिए कि 18 साल से कम वाले को सिगरेट, टैबेको प्रोडक्ट नहीं देना है. आप किसी को भी भेज के देख लीजिए कौन सा दुकानदार मना कर देता है. बिजनेस इज़ बिजनेस, दे आर रियल बिजनेस, दे आर नॉट वरीड अबाउट एनी बिजनेस. वो केवल अपना और अपना बिजनेस. तो कॉमर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तो आप कुछ भी, और दुनिया में जो कुछ हो रहा हो कॉमर्स के लिए हो रहा है, ये मान लीजिए आप, है ना. और अगर कॉमर्स नहीं होता तो हमको अच्छे कपड़े थोड़ी मिलते हैं. वो किसका इंटरेस्ट रहता, वो मेरे को खुद को बनाने पड़ते फिर. लेकिन क्योंकि उनको नए नए प्रोडक्ट बनाने में उनको ज़्यादा कमीशन आ रहा है तो वो बना रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग, ठीक है. तो सब कुछ कॉमर्स है ना. कॉमर्स में तो बहुत सारी लाइन्स है, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट्स, इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स, दैट इज़ ICW है, जो इंडस्ट्रीज़ का पूरा हिसाब लगाती हैं, बताती हैं भैया आपको कितना पैसा की ज़रूरत पड़ेगी, रनिंग कॉस्ट कितनी होगी, स्टैंडिंग कितना पैसा होना चाहिए आपके पास, कितना पैसा किस हिसाब से होना चाहिए, ठीक है. BBA and MBA करके बच्चा जो है वो मैनेजर बन सकता है ना. वो मैनेजर बैंक में बन सकता है, वो पोस्ट ऑफिस में बन सकता है, वो इंडस्ट्रीज में बन सकता है. कंपनी सेक्रेटरीज एवरी कंपनी रिक्वायर, ठीक है. वो है बैंकिंग के अंदर लॉट ऑफ स्कोप, ठीक है. इंश्योरेंस, एवरीथिंग अबाउट इंश्योरेंस इज ओनली दिस थिंग,
बेसिकली कैलकुलेटेड, बेसिकली डन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है। देन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड किसका काम है? मैं बायो से थोड़ी कोई शेयर म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा, लेकिन उससे मार्केटिंग एंटायरली डिपेंडेंट ऑन दिस लाइन, ठीक है। अकाउंटेंट्स, स्टैटिस्टिशियंस, क्या करते हैं स्टैटिस्टिशियन? हर चीज़ का स्टैटिस्टिक्स रखते हैं, शेयर मार्केट का स्टैटिस्टिक्स। वो कैसे बताते हैं कि भाई इतने पे स्टॉप लॉस लगा देना? वो कैसे बताते हैं कि भाई ये शेयर यहाँ तक जा सकता है, दिस इज़ द पोटेंशियल? क्या है? स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। वो कैसे फ्यूचर्स के ऊपर डील करते हैं कि भैया नेक्स्ट गोल्ड का कॉस्ट कितना तक जा सकता है या पेट्रोल का कॉस्ट कहाँ तक जा सकता है, हाउ दे आर डिसाइडिंग ऑफ द फ्यूचर। तो वो सब स्टैटिस्टिक्स होता है। पॉपुलेशन कैसे बढ़ी, महंगाई क्या हिसाब से बढ़ रही है, डिमांड कैसी रहेगी, आगे त्यौहार क्या आ रहे हैं, एंड उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, कॉमर्स इज़ फुल, एंड कॉमर्स का कोई बंदा कभी बेरोज़गार नहीं रह सकता क्योंकि इतने सारे स्कोप है। लेकिन मैंने फिर आपको ये बताया ना, कॉमर्स के नंबर ऑफ़ स्कोप्स ऐसे हैं जो कि उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छे कोर्सेज जो हैं दूसरे होते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि नर्सेस को हम आज तक ऐसा देख रहे थे, अरे नर्स ही तो है। टीचर्स को हम ऐसे थे, टीचर ही तो है। क्या कमाता होगा? 70,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। आजकल जब सब लोग लाखों में बात कर रहे हैं तो टीचर की, नर्सिंग की, तो पीपल क्या है, वी आर जस्ट थिंकिंग ऑफ दैट वे। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई टेल, आई वेंट टू अब्रॉड। कोई किसी को कोई मतलब ही नहीं है कि वो आप क्या करते हो। नो बडी इज़ बॉदर्ड, नो बडी आस्क्ड मी। 40 डेज आई वॉज देयर, ठीक है। 40 डेज में किसी ने नहीं पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग देयर। और यहाँ क्या होता है, जैसे कोई हमारे नेबर्स में आता है, कोई भी नया मकान में आता है, कोई भी आता है, हम पूछते हैं क्या करता है, क्या करता है, कहाँ जॉब करता है? तो we are only measuring a person on the basis of his salaries। क्या जॉब रहेगा, उसके पास क्या सैलरी रहेगी, उसके ऊपर की इनकम क्या होगी। ऊपर की इनकम ने तो देश को बर्बाद कर दिया है सारा भ्रष्टाचार से, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग रॉन्ग। चलिए, स्कोप्स इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, जोग्राफी हो, पॉलिटिक्स साइंस हो, है ना। तो ये देख लीजिए, इट इज़ आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट्स जो होता है वो एक कला है। कला मतलब जीने की कला है, वो पॉलिटिक्स करने की कला है, वो क्या कहते हैं, देश को चलाने की कला है, खाने पीने की कला है, डांस की कला है, फोटोग्राफी की कला है, डायलॉग बोलने की कला है, ठीक है। एवरीथिंग वेयर सम टाइप ऑफ आर्ट इज इन्वॉल्व इज आर्ट्स, ठीक है। तो देख लीजिए वहाँ क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है। वो हिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है, साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी दैट इज़ सिविक्स, क्या क्या किस हिसाब से कंट्री को मैनेज करेंगे। तो पंचायत से लेकर के, सरपंच से लेकर के, या वार्ड सिटी में होगा, अर्बन सिटी में होगा तो क्या कहते हैं, पार्षद रहेगा, वहाँ से लेकर के और मेजर तक, और क्या कहते हैं वो, मेयर तक, ठीक है, मेयर तक। और उसके बाद फिर हमारे एमएलएज रहेंगे, फिर एमपीज़ रहेंगे, फिर मिनिस्टर्स रहेंगे, और किस तरह से हम, तो ये सारा का सारा हम जो है वो सिविक्स में पढ़ेंगे, वो कैसे काम करते हैं और देयर वर्क। और हमको ये सारी चीज़ें तभी देखने को मिलती है जब इलेक्शन होता है किसी स्टेट में। अच्छा भाई, टोटल सीट्स इतनी है तो उसका 2/3 मेजोरिटी इतना होता है, जीतने के लिए इतना चाहिए, फिर ये और इतने ही मिनिस्टर बन सकते हैं, दिस एंड दैट। अदरवाइज सिविक्स वॉज मेरे तो बल्ले कभी नहीं आई। तो दैट इज़ वाई वन ऑफ द रीज़न आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर आर्ट्स, यानी। फिर इसके अलावा लैंड, इट्स बाउंड्रीज, रिसोर्सेज, है ना, क्या क्या टाइप के रिसोर्सेज मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसा सीज़न रहता है, गर्मी कितनी रहती है, बारिश कितनी, रेनफॉल कितना होगा, दिस एंड दैट, एवरीथिंग दैट इज़ पार्ट ऑफ जियोग्राफी, दैट इज़ ऑल्सो इन आर्ट्स, ठीक है। दैन आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स, जिसके अंदर पॉलिटिकल साइंस, इसका वर्किंग स्किल, राइटिंग स्किल एक्सेट्रा अगर जहाँ इंक्लूड हो जाते हैं वह। फिर ड्राइंग, स्केचेस, पेंटिंग, डिज़ाइनिंग अगेन। अच्छा, डिज़ाइनिंग के लिए वही जो सारी चीज़ें मैंने बताई थी, है ना, वो सारी डिज़ाइनिंग जो है वो उसके लिए कोई पर्टिकुलरली ये नहीं है कि उसको मैथ्स ही होना चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है। वो आर्ट्स वाला भी कर सकता है, वैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रेफरेंस इनको मिलती है बिकॉज दे आर समथिंग टू डू विद द स्कल्पचर्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये हो गए हैं। इसके अलावा जर्नलिज्म आजकल की डिमांड है सबसे ज़्यादा, किसी से भी पूछो क्या करें, जर्नलिज्म करेंगे साहब, मास मीडिया करेंगे, ठीक है। तो जर्नलिज्म है, ठीक है, मास मीडिया, फोटोग्राफी। अब फोटो जर्नलिस्ट हो सकता है, फोटोग्राफी हो सकता है, फोटो ब्लॉग राइटर हो सकता है, फोटोग्राफी कहीं हर जगह पे चल रही है फोटोग्राफी। देन स्पीकर्स, स्पीच डिलीवर्स, स्पीच राइटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है। और पॉलिटिशियन का अपना स्पीच डिलीवर करने वाला हर स्पीच राइटर है जो राइट करेगा वो देखेगा कि क्या चीज़ किस चीज़ को पकड़ना है। एक टैग लाइन होगी हर की, ठीक है। ऐसे हम कॉपीराइट देखते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी इसमें, होम मेकर्स, होम साइंस, ठीक है, वो सारे डांस, सिंगिंग, पोइट्री, एनवायरनमेंट एंड इट्स प्रोटेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लॉट ऑफ स्कोप्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें इंटरडिसिप्लिनरी है, अपन ने देखा, ठीक है। ये ब्रांच उस ब्रांच के साथ, वो ब्रांच इस ब्रांच के साथ जुड़ जाती है, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन ऑन, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। फिर कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जिसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है ना, आप किसी भी लाइन से जा सकते हैं। आप आईएएस बन सकते हैं, सिविल सर्विसेज, आरएएस, दैन आईपीएस एंड आईएफएस। ना आरएएस तो राजस्थान के लिए, इसके अलावा बाकी किसी भी जगह का हो सकता है। आईएफएस फॉरेन सर्विसेज, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज हो गए, बैंक पीओज हो गए, ऑफिसर्स इन इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एमबीए, ठीक है, ऑफिसर्स इन आर्म फोर्सेस, लेक्चर, ये कोई सी भी सब्जेक्ट से जाओ, हर सब्जेक्ट के इनके स्कोप्स मिलते हैं, ठीक है। यू गो फ्रॉम एनी लाइन ऑफ स्टडीज़। इसके अलावा टीचर्स कोई भी बन सकता है। जॉब्स इन द वेरियस इंडियन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, रेलवेज, होटल मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग ऑफिसर्स इन द वेरियस ऑफिस, मर्चेंट नेवी, बीबीए एंड मेनी अदर। ये इनके लिए कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। वन कैन डू फ्रॉम एनी सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so now I'm going to tell you one very important thing, which you all have to see in yourself, and this will be very important. Then you will not make that mistake which was made by many of the people, those who have started their studies with something and then finally landed up somewhere else. And the most famous example of Chetan Bhagat, I said, he started from IIT and then MBA, then working in bank, and then finally landing up into writing. So every person has got certain kind of intelligence. There are 9 different type of intelligence which are observed, and these you have to see within yourself. There are number of organization who are helping you to find out, or they are testing the intelligence, okay. So you can even join them and you can find out that what type of intelligence you have got, and accordingly you can assess your intelligence, and then you can choose one of those subjects. So I am seeing here, showing here that first is linguistic intelligence, that is the intelligence of speech, languages, ठीक है। So these people can get, these will be having a very successful job in the librarian, curators, speech pathologist. There are people who are stammer, or those who are finding it difficult to speak, तो for them they are very good this thing. इसके अलावा they are very good writers, they are good radio or TV announcers, journalists, lawyers, orators, speakers, ठीक है, debaters, they are very good. So all the jobs related to these type of things. Now you might have seen, if you want to buy a car, you go to the showroom, and no sooner you reach to the showroom, 2 3 4 people are there, they will come and stand with you. हाँ सर, क्या करना है सर? कार लेनी है। अच्छा, कार लेनी है, कौन सी सर? अच्छा, बैठिए बैठिए, and then they'll start, and you go to buy a 5-seater हैचबैक कार, एंड वो आपको एक SUV पकड़ा के देंगे. So good in speech, so good in in their dialogues, that वो आपको पूरा आपका सब कुछ चेंज कर देंगे. सो दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट. ठीक है. अब कपिल का शो आप देखते हैं, क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है? यू स्पीक एनी थिंग एंड यूल कैच वन लाइन फ्रॉम इट एंड इमीडिएटली जैसे. ऑफकोर्स वो अलग बात है कि वो सब लिख करके लाते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, लेकिन फिर भी इतना कुछ सोचना, उसके बोलना, ये सारा कुछ आप नहीं कर सकते एक दिन में. जस्ट टू मेक दिस पर्टिकुलर वीडियो आई हैड टू थिंक सो लॉन्ग, है ना. कितना कुछ सोचना पड़ा. ये जो स्पीच राइटर वगैरह होते हैं, लिंग्विस्टिक अप्रोच जिनकी होती है, जो बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, उनके लिए डेटा फट से आना चाहिए, उसके बाद तो फट से बोल देंगे. देन सेकेंड है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. तो ये डेटा से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो फटाफट करते हैं. तो देखिए ऑडिटर, क्या काम होता है ऑडिटर का?
किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी बैंक में, जहाँ ऑडिटिंग के लिए पहुँच जाते हैं किसी भी ऑफिस में, वो जिस काम को हम जो है महीनों से सजा करके रख रहे होंगे डे बाई डे, वो बस एक नज़र ही मारते ट ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया बताओ, एंड यू आर आउट या ब्लैंक। ठीक है, तो ऑडिटर, अकाउंटेंट, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डील कर चुका हूँ, पर मैं अलग अलग उसके अंदर ये सब तरह के जॉब होते हैं। लेकिन ये जॉब तभी आप परस्यू करें इन लाइन में, तभी आप जाएं इफ़ यू गॉट दिस। ठीक है, कंप्यूटर एनालिस्ट, टेक्नीशियंस। तो आप देखिए, आप क्या मैथ्स में खेलना आपको अच्छा लगता है क्या, नंबर्स वगैरह में, किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना, अंडर रूट निकालना, किसी का भी टोटल करना, हाउ फास्ट यू आर, हाउ फास्ट यू इमीडिएटली फाइंड आउट कि कौन सा फिगर कैसा है, जितने नंबर लिखे उनमें से ऑड नंबर कौन सा है, इमीडिएटली आपको, अगर वो सब आप कर सकते हैं, मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस आप में है, तो यू मे बी वेरी गुड इन वन ऑफ दिस। ठीक है, आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप ऑडिटर बन सकते हैं, आप क्या कहते हैं साइंटिस्ट बन सकते हैं, स्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं, रॉकेट वगैरह भेजते हैं ना। इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, इमेजिन कीजिए कि हम यहाँ से एक रॉकेट भेजते हैं मून पे, और रॉकेट इन मून, आई जस्ट गिव यू अनदर एग्जांपल रिलेटेड टू इट। अब यहाँ से मून तो पता नहीं हज़ारों किलोमीटर दूर है ना। अगर हमारा जो एंगल होता है ना, आप कैरम खेलते हैं, कैरम छोटा सा कैरम बोर्ड होता है, हम स्ट्राइकर लेते हैं और ऐसे निशाना मारते हैं कि मैं यूँ करूँगा तो स्ट्राइकर वहाँ जाके लगेगा और वो कॉइन उधर जाके लगेगी, और जरा सा हमारा निशान टेढ़ा, और यार इतना सा चेंज हो गया, इतना सा चेंज हो गया, इतना सा बोर्ड है 1 मीटर का, 1 मीटर के बोर्ड में अगर इतना सा चेंज होता है, स्ट्राइकर कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। इमेजिन कीजिए आपका रॉकेट यहाँ से वहाँ पहुँचना है मून पे, वो तो हज़ारों किलोमीटर दूर पहुँच जाएगा, मच अवे फ्रॉम। आयरन डोम का नाम सुना होगा ना आपने, आयरन डोम इन दिनों जब इसराइल की लड़ाई हुई थी हमास से, तो क्या था आयरन डोम, कि वो हमास वाले कोई भी रॉकेट भेजते थे और इसराइल वाला यहाँ से उसको हवा में ख़त्म कर देते, तहस नहस कर देते। हाउ एक्यूरेट दे वर, हाउ एक्यूरेट, वो फट से जैसे वो उसको देखता था, सैटेलाइट बता देता भाई उधर से आ रहा है, स्पीड से आ रहा है, इस एंगल से आ रहा है, यहाँ रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली दे यूज्ड टू सेंड देम रॉकेट्स एंड दे यूज्ड टू स्ट्राइक इट। हाउ एक्यूरेट, 90% सक्सेस थी उसकी। ठीक है, कौन कर रहा है, मैथमेटिशियंस कर रहे हैं। देन स्पेशल इंटेलिजेंस, जो आगे के बारे में सोच लेते हैं, है ना, जो किसी भी चीज़ को देख कर के आगे के बारे में, वो ये भी उन्हीं का रिलेटेड काम है। इंजीनियर, सर्वेयर, आर्किटेक्ट, अर्बन प्लानर, पहले से सोच लेते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। यहाँ पे अर्बन प्लानर है, हमारा देश तो कहीं बनता ही नहीं अर्बन प्लानिंग के हिसाब से। यहाँ तो सब ये देखते हैं कि इंच इंच ज़मीन जो है काम आ जाए, तो फिर पता चलता है थोड़े दिनों में सबकी कारें तो रोड पे खड़ी हैं, रोड तो और नैरो हो गया है, फिर उसके बाद आपकी कार तो जगह नहीं रहती है ना, और बड़े बड़े से बाज़ार बन जाते हैं लेकिन देयर इज़ नो पार्किंग प्लेस। तो वो स्पेशल इंटेलिजेंस वाले जो होते हैं वो इन सबको बताएं। ठीक है, ग्राफिक आर्टिस्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, फोटोग्राफर, पायलट्स एक्सेट्रा। तो ये आगे की सोच रखने वाले, इन किसी चीज़ को आज के हालात को देख करके इमीडिएटली आगे क्या होगा सीधा। बॉडी काइनेस्टिक, जहाँ पे हम अपनी बॉडी को किस हिसाब से अपने हिसाब से ट्रेन कर सकते हैं, कितनी इंटेलिजेंस है हमें। ऑल द डांसर्स, विधाएं देखो कैसा है, मतलब वो उंगलियाँ कैसे कैसे चलाते हैं, ठीक है, आंखें कैसे कैसे मटकाते हैं, कैसे उंगली वो क्या कहते हैं कुछ डांसेस होते हैं वो तो पूरे पूरी आँखों में एवरीथिंग दे स्पीक थ्रू आइज़ ओनली, आइज़ और यहाँ हाथ सब कुछ हो गया। ठीक है, तो बॉडी काइनेस्टिक, तो फिजिकल थेरेपिस्ट है ना, जिसमें जो स्पीच मतलब जो भी आपने फिजियोलॉजी क्या कहते हैं, जब भी किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाता है हम एक्सरसाइज कराते हैं, वो सारी चीज़ें इससे ही रिलेटेड है ना। तो ये हो गए फिजिकल थेरेपिस्ट। इसके अलावा डांसर्स, एक्टर्स, मैकेनिक्स बिकॉज दे मस्ट नो किस एंगल से किस हिसाब से लगाना है। आप स्पानर लगा नहीं ले रहे हैं और वो कर रहे हैं। हाँ, कारपेंटर्स, फॉरेंसिक, फॉरेस्ट रेंजर्स, ज्वेलर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उससे। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, जहाँ सब समथिंग रिलेटेड टू म्यूज़िक है, तो क्या अगर म्यूजिशियन बनेगा, पियानो ट्यूनर, म्यूज़िकल थेरेपिस्ट। ठीक है, देन कोरल डायरेक्टर, देन कंडक्टर, देर आर नंबर ऑफ थिंग्स। आजकल इसके साथ साइंस जुड़ गई है पूरी, है ना। आजकल पूरे के पूरे इनके थिएटर बन गए हैं, इनके पूरे लैब्स बन गए हैं, और सारा काम आजकल कंप्यूटर पे हो जाता है, तो ये सब उसके लिए वो ज़रूरी है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, आप कैसे दूसरे आदमी के साथ टैकल करेंगे, है ना। तो ये सारे कहाँ काम आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, अ पर्सन हु कैन
हु कैन कंट्रोल अदर, वो अपने विचार से आपको बदल सकता है। ये जितने भी साधु सन्यासीज हैं ना, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट वेरी मच एडुकेटेड ऑल्सो, many of them are not very many, but they are having interpersonal administrator। रामदेव बाबा जिसके सामने बैठ जाते हैं उसको अपनी बातों में ख़त्म कर दें। बड़े बड़े लोग जाते हैं और वो बोलते हैं कि 1000 मरा, हाँ साहब 1000 मरा। उसने कहा 10,000 मर गए, 10,000 मर गए। वहाँ उस सभा में 1000 मरे थे, इस सभा में आके 10,000। दे आर सच गुड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट पर्सन कि वो आपको स्तब्ध कर देंगे अपनी बातों में, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये दे कैन बी वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर अपनी बातों से ऐसे सबको। देर आर मैनी गुड एंड देर आर मैनी बैड, ठीक है। अब आप हिटलर को क्या कहोगे, वो भी यही था, है ना। अब आर्मी के जो क्या कमांडिंग ऑफिसर होते हैं या कोई भी टीम लीडर होता है या किसी गेम का वो होता है, वो सब यही काम करते होते हैं। मैनेजर्स हैं, पर्सनल वर्कर हैं, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हैं, नर्सेज हैं, पब्लिक रिलेशन पर्सन है, सोशल डायरेक्टर है, टीचर्स हैं। क्या करते होते हैं टीचर भी, तो ये करते हैं। वो बच्चा जो घर में 1 घंटे चुप नहीं रह सकता, मम्मी पापा को परेशान कर देता है, मम्मी पापा आते बोले सर आप कैसे मैनेज कर लेते हो सर इनसे, हमसे तो ये 15 मिनट चुप नहीं बैठता, घर के अंदर परेशान कर देते सर। यहाँ म्यूज़िक चलाएगा, वहाँ डांस करेगा, वहाँ चिल्लाएगा, और कार का हॉर्न बजाने लग जाएगा, ऐसे आप कैसे बैठा लेते हो इसको। बैठाना पड़ता है साहब, ठीक है। तो ये है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अपने खुद के बारे में, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, काउंसलर, थियोलॉजियन एंड इसके अलावा प्रोग्राम प्लानर एंड एंटरप्रेन्योर, अपने खुद की इंटेलिजेंस निकाल। एंड नेचुरलिस्टिक, जो नेचर्स के बारे में इंटेलिजेंस रखते हो। हर किसी को थोड़ी आप बोल सकते हो कि जाओ भाई आप फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाओ, हर किसी को थोड़ी बोल सकते हो कि आप खेती बाड़ी कर लो। उसको पता ही नहीं होगा कौन सा प्लांट कब उगता है, उसको पता ही नहीं होगा सैपलिंग कब आ रहे हैं, फ्लावर कब आना है, सोइंग कब करना है, इरिगेशन कब करना है। तो ये सब जो होता है वो नेचर से क्लोज जो होते हैं वही लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो एक इंटेलिजेंस होती है नेचर की, तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, बॉटनिस्ट हो गए, एस्ट्रोनॉमर हो गए, वाइल्ड लाइफ इलस्ट्रेटर हो गए, मीटीरोलॉजिकल मौसम विज्ञान, शेफ वो भी नेचर, ठीक है, जियोलॉजिस्ट, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कुछ है, सॉरी, गार्डनर। तो ये लोग क्या कर रहे होते हैं, ये सब नेचर को ही तो देख रहे होते हैं, ठीक है। कई लोग जो है मतलब नेचर को इतना ब्यूटीफुली वो डिज़ाइन कर देते हैं कि देयर इज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ ह्यूमन एंड द एनिमल्स, और वो अपनी अपनी जगह पर रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे, तो दीज आर द डिफरेंट इंटेलिजेंस, एंड इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम किसकी जगह पे, तो आपको अपनी अंदर की इंटेलिजेंस ढूंढनी होगी। अभी आपके पास टाइम है नया कोर्स सेलेक्ट करने से पहले, अपने अंदर की इंटेलिजेंस ढूंढो और उसके हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ कर लो। अगर आप नहीं करेंगे, गलती करेंगे, तो फ्यूचर में आपको चेंज ही करना पड़ेगा ना। हु कैन चेंज, ठीक। आप साइंस बायो से मैथ्स में आ सकते हैं, मैथ्स से बायो में नहीं जा सकते, ठीक है। मैथ्स से बायो में नहीं जा सकते, बायो से मैथ्स में आ सकते हैं। मैथ्स से आप कॉमर्स में जा सकते हैं, मैथ्स से आप आर्ट्स में जा सकते हैं। आर्ट्स से आप कॉमर्स में भी नहीं आ सकते, आर्ट्स से आप मैथ्स में भी नहीं आ सकते, आर्ट्स से आप बायो में भी नहीं आ सकते। तो मैंने कहा है बायो से आप किसी भी लाइन में जा सकते हैं, ठीक है। बायो वाला मैथ्स ले सकता है, बायो वाला कॉमर्स ले सकता है, बायो वाला आर्ट्स ले सकता है, ठीक है। फिर मैथ्स आया, मैथ्स वाला कॉमर्स ले सकता है, मैथ्स वाला आर्ट्स ले सकता है, लेकिन मैथ्स वाला बायो नहीं ले सकता, बिकॉज वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो उसका छूट गया होगा प्रैक्टिकल वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो सेम हो गई, लेकिन बायो का कुछ छूट जाएगा उसका, ठीक है। कॉमर्स वाला आर्ट्स ले सकता, कॉमर्स वाला मैथ्स में नहीं आ सकता, कॉमर्स वाला साइंस तो सोच ही नहीं, ठीक है। तो ये एंड आर्ट्स वाला, तो फाइनली डिसाइड कर लीजिए, अगर आपने आर्ट्स सब्जेक्ट लिया यू विल बी क्लोजिंग योर ऑल वेज, आप किसी और सब्जेक्ट में जा सकते हैं। आप बायो से मैथ्स में भी जा सकेंगे, कॉमर्स में भी जा सकेंगे, आर्ट्स में भी जा सकते हैं। मैथ्स से आप कॉमर्स में भी जा सकेंगे, आर्ट्स में भी जा सकेंगे, बायो में नहीं आ सकेंगे। हाँ, अर्लियर 1-2 महीने के अंदर ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी बाद में जो है इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। और अगर आप 12th करने के बाद 12th में आपने जो है साइंस बायो के साथ में कोई भी सब्जेक्ट करा और आगे आप फर्स्ट ईयर में कॉलेज में जा कर के आप सब्जेक्ट चेंज करना चाह सकते हैं, यू गॉट ऑल अपॉर्चुनिटीज़। बट जो मैथ्स लेकर का आया होगा उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्लोज हो जाएंगी।
जो कॉमर्स लेकर आएंगे उसके लिए इधर वाली अपॉर्चुनिटी क्लोज हो गई, आर्ट्स में जा सकता है। जो आर्ट्स लेकर आएगा उसकी सारी अपॉर्चुनिटी, फिर वो आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में जा सकता है, ज्योग्राफी की जगह सिविक्स में, सिविक्स की जगह क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स की जगह किसी और, वहीं के जो लैंग्वेज हैं या उनमें किसी में भी जा सकता है, ठीक है। सो दीज आर द हायरार्कीज फ्रॉम वेयर वी कैन स्विच ओवर। एंड with this we come to the end of the today's discussion. And now by now I think you are well aware कि what are the pros and the cons, what are the advantage and disadvantage, what are the factors on the basis of which you can choose your selection subject. Now please, I'll request the parents, please don't force your child to take a particular subject, ठीक है। जॉब तो बहुत सारी होती हैं, जॉब तो बहुत सारी हो सकती है। अब जिसका घर का बिजनेस है वो कुछ भी पढ़े से अब क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसको तो संभालना बिजनेस ही है, ठीक है। लेकिन आज का टाइम इतना रैपिडली चेंज हो रहा है, हम ये नहीं कह सकता आपका बिजनेस हो तो वो हमेशा चलेगा। ये जितनी ऑटोमोबाइल शॉप्स हैं आज की तारीख में जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ बेच रहे हैं, आने वाला टाइम सारा इलेक्ट्रॉनिक वाला है। ज़रूरी थोड़ी कि यही सेम कंपनी इलेक्ट्रॉनिक में उतना अच्छा मार्केटिंग करे, प्रोडक्ट लेकर के आएंगे। तो आज हुंडई वाले बहुत अच्छी गाड़ियाँ बना रहे होंगे, बेच रहे होंगे, मारुति वाले बहुत टीम लीडर हैं आज पूरी दुनिया, पूरे भारत की आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ वो बेच रहे हैं। पर ज़रूरी थोड़ी कि जब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आने लग जाएंगी और पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी तो इनको उतना ही शेयर मिलेगा। हो सकता है कि इलेक्ट्रिक के अंदर ये बहुत पीछे रह जाए, ठीक है। तो यू कांट से द थिंग्स विल गो ऑन रिमेनिंग सेम। आज आप एक होटल खोल लेते हैं, जरूरी थोड़ी कि वो होटल उतना ही अच्छा चलता रहेगा 10 साल बाद भी, क्योंकि एवरी टाइम ए न्यू होटल कम, एवरी न्यू जॉइंट कम, एवरी पीपल गोज इन टू दैट। वो बोले यार एक नया होटल खोला है, चले देखते हैं। तो पुराने की तरफ तो आ ही नहीं रहे हैं, पुराने में तो फिर वही आएंगे जिनको टेस्ट है, या फिर आप चेंज करते रहें, ठीक है। सो यहाँ बहुत, तो आज की तारीख में बिज़नेस भी खरे नहीं है। जैसे पहले आपने एक बिज़नेस खोल लिया और आप सोच रहे हैं कि पीढ़ियाँ चल जाएंगी, आज की तारीख में वो भी नहीं है ना। बड़ी लाखों करोड़ों की मूवीज़ बनती है, चलती ही नहीं है। कुछ बिल्कुल थोड़े से पैसे लगा के मूवी बनाई मशान जैसी और बिजनेस कर जाती है, ठीक है। सो यू डोंट नो what is the liking, what is not liking, what are the how the time changes, ठीक है। सो आप कुछ नहीं जानते आज की तारीख में। एप्पल जैसी कंपनी अमेरिका में, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी, वो आज अपने वर्कर्स को वापस ऑफिस में बुला रही हैं। और 50% लोगों ने कह दिया हमें नहीं आना, वी वुड लाइक टू कंटिन्यू टू वर्क फ्रॉम होम, अगर आपको कराना है तो ठीक है, अदरवाइज वी आर पुटिंग आवर रेजिग्नेशन। एंड दिस इज़ अ कॉमन थिंग वर्ल्ड ओवर इन मोस्ट ऑफ द बिजनेस। तो टाइम चेंजिंग एंड वी हैव टू बी रेडी विद द चेंजिंग टाइम। तो हमने भी तो स्कूल्स में यही किया, हमने भी तो ये स्कूल में यही किया। एक संस्कृत टीचर जिसने कभी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया था, आज हमने उसको इतना कंपेटेबल बना दिया है कि वो अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो चीज़ें शेयर कर रहा है, उसकी वीडियो बना रहा है और उसको अपलोड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है। तो वन हैज़ टू बी वेरी मच रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस। और जो नहीं है तो उनके लिए तो रास्ते बंद हैं। दैट्स ऑल चिल्ड्रन, चूज़ योर सब्जेक्ट वाइजली, है ना। होप दिस वीडियो मस्ट हैव गिवन यू सम गुड थिंग्स, है ना। और इसको यूज़ करके आप अपना बेस्ट डिसीज़न लें। ये वाली जो स्लाइड मैंने अभी आपको दिखाई है इंटेलिजेंस वाली, इसको ज़रूर ध्यान रखें, इसको ज़रूर ध्यान रखें। और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप में क्या पोटेंशियल है जिससे कि आप किस चीज़ को जा सकते हैं। बिकॉज इफ़ आई डोंट नो एनीथिंग ऑफ म्यूज़िक और मैं म्यूज़िक की शॉप खोल लूँ एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो इट विल बी यूज़लेस, आई विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन माई वर्कर्स, ठीक है। अब जो समोसे की दुकान खोले और उसको समोसा बनाना नहीं आया, जिस दिन उसका वर्कर छुट्टी पे चला गया उस दिन समोसे की छुट्टी, ये थोड़ी होता है। वन मस्ट नो, ठीक है। तो ये हमारे को अपनी अपनी इंटेलिजेंस को जांचना है। दैट्स ऑल चिल्ड्रन, गुड डे, एंजॉय डे, काइंडली शेयर इट विथ एवरीवन। और इस वीडियो के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आप अपने मित्रों को, दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने साथियों को, अपने पेरेंट्स को, अंकल आंटी को, सबको सजेस्ट कीजिए देखने के लिए, सो दैट दे विल कम टू नो what are the basis of selection of subject, because here making a small mistake will be your spoiling your future। एंड जहाँ और जिस भी जगह से आपको तरीका मिल सकता है राइट सब्जेक्ट चूज़ करने का, उन सब जगह कंसल्ट कीजिए, तब कहीं जा कर के करिए, अदरवाइज इट विल बी ए ब्लंडरस मिस्टेक। थैंक यू चिल्ड्रन, गुड डे, एंजॉय योर डे।